السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ارشیا شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارمیا کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب مواڈا معاملے میں ای ڈی نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کر دیا ہے۔ حالانکہ کانگریس نے اس معاملے میں مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ ای ڈی کا استعمال کر کانگریس کی کرناٹک حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارمیا کے خلاف ای ڈی کی کارروائی کے بعد ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا ہے۔ اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ای ڈی نان بایولوجیکل وزیر اعظم کے لیے سیاسی مخالفین کا استحصال اور بدلے کی سیاست کرنے کا ایک اوزار بن کر رہ گیا ہے اور یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ 2023 کے مئی ماہ میں کرناٹک کے لوگوں نے انہیں بری طرح خارج کیا تھا۔ وہ اس بے عزتی کو بھول نہیں پا رہے۔ جے رام رمیش اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ مودی لکھتے ہیں کہ حکومت اور ان کی ای ڈی جلد ہی پوری طرح سے بے نقاب ہوگی۔ ہمارے لیے کسی بھی طرح سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بے قصور ثابت ہوں گے۔ واضح رہے کہ میسور شہری ڈیولپمنٹ اتھارٹی معاملے میں ای ڈی نے سدارمیا کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے۔ جے رام رمیش نے ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو نتیجہ خیز مینڈیٹ ملنے کی امید ظاہر کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سال کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار سے ودائی کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری نے 30 ستمبر کو خبر رساں ایجنسی سے خصوصی گفتگو کے دوران یہ بیان دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں بھی پولرائزیشن کا سہارا لے رہی، لیکن عوام سے وہی سبق سکھائے گی جو اس سال لوک سبھا انتخابات میں سکھایا تھا۔ جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ 8 اکتوبر کو اسمبلی انتخابات کے جو نتائج برآمد ہوں گے اس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید جھٹکا لگے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہریانہ اور جموں کشمیر کے نتائج سامنے آئیں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں خواتین کی آمد پر پابندی تاہنوز برقرار ہے۔ حالانکہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ انتظامیہ نے اس سلسلے میں نرمی اختیار کی ہے۔ کئی نئے قوانین کو حتمی شکل دے کر خواتین کو دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں آمد و رفت کی مشروط اجازت دینے پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ ادارے کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے سوشل میڈیا پر وائرل خبروں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ابھی تک پابندی ہٹائی نہیں گئی ہے، بلکہ انتظامیہ کچھ نئے قوانین بنانے پر غور کرے گی۔ ان قوانین کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد ہی خواتین کو دارالعلوم دیوبند میں آمد و رفت کی مشروط اجازت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ سال رواں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے طلباء کی بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے کئی نئے قوانین نافذ کیے تھے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس اپنی پوری طاقت جھونکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈران راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت کئی دیگر سرکردہ لیڈران ہریانہ میں نظر آ چکے ہیں۔ انہوں نے پارٹی امیدواروں کی حمایت کا بھی آغاز کیا ہے۔ ہریانہ وجے سنکلپ یاترا میں یہ یاترا صبح امبالہ کے نارائن گڑھ میں عظیم الشان جلسے سے شروع ہو کر یمنا نگر ملانا شاہ آباد میں واقع ہوتے ہوئے پہنچی۔ شام کو تھانیسر اور اس کے علاوہ عظیم الشان انتخابی جلسے کا انعقاد بھی ہوا، جس میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بی جے پی کو ہدف تنقید بنا دیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے ہندوستانی تہذیب، زراعت اور پھر دیکھ بھال میں سودیشی گائے کی اہمیت کو راج پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ماتا راج رسمی طور سے ان کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے جاری اعلان میں بتایا گیا ہے کہ سودیشی گائے کو ہندوستانی ثقافت میں ویدک دور سے ہی اہم مقام حاصل تھا۔ اس کی اہمیت نہ صرف مذہبی ہے بلکہ طب اور زراعت میں بھی اس کے کئی فائدے دیکھنے کو ملے ہیں۔ گائے کا دودھ اپنی غذائیت کے سبب انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مراٹھواڑہ میں دیوری میں للکا ناری اور شمالی مہاراشٹر میں ڈانگی وشودھب جیسی مختلف دیسی اور نسلوں کی گائے پائی جاتی ہے۔ حالانکہ دیسی گایوں کی تعداد میں تیزی سے آ رہی گراوٹ کو لے کر فکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ تازہ فیصلے کے بعد حکومت کو امید ہے کہ کسانوں کو ان گاڑیوں کی پرورش میں حوصلہ مند رہنا چاہیے۔ مہاراشٹر میں دیشی نسل کو گایوں کو ماتا کا درجہ دیے جانے کے بعد سی پی رادھا کرشنن کی طرف سے دستخط شدہ ایک سرکاری حکم میں بھی کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گائے دور قدیم سے ہی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ رہی۔ دور قدیم سے ہی گائے کو نام دیا گیا تھا اور اس سے تاریخی، سائنسی اور روحانی اہمیت حاصل ہے۔
तिरुपति मंदिर लड्डू तनाजे पर समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम देवताओं को तो सियासत से दूर रखना चाहिए था। साथ ही अदालत ने सबूत मांगते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू के इसी दावे पर सवाल उठाया है। तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में मवेशियों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने पूरे मामले का तस्करा करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आला ने खराब लड्डू का दावा किया है, जबकि इस मामले में FIR दर्ज की गई और IT 26 सितंबर को तश्कील दी गई है। इस मामले में बेंच ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि एक आला आईनी अफसर के अवामी तौर से ऐसा बयान देना मुनासिब नहीं है जो करोड़ों लोगों के जज्बात को मुतासिर करता है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जारी सरगर्मियों के दरमियान कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडरान अंबाला के नारायणगढ़ में जमा नजर आए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यहां एक जलसा से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत पर कई तरह के सवालात उठाए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत के किसानों, नौजवानों और खिलाड़ियों के इश्यूज पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अवाम से मुखातिब होते हुए किसानों के ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि 10 सालों से आपकी रियासत में बीजेपी की हुकूमत रही है और आपके इस एहतराम के बदले उन्होंने क्या दिया है। आपको बेइज्जत किया और आपको जलील किया, हर तरह पर आपको नुकसान पहुंचाया है। यहाँ का किसान इस पूरे मुल्क का अन्नदाता है। आपने तहरीक की, 3 सियाह खवानीन लाए गए, आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, कुछ भी समाप्त नहीं हुई है। आपको कहा गया था कि MSP मिलेगी और आज भी जो MSP दी जा रही है वो 24 पैदावार के लिए दी गई है, उनमें से 10 आपकी ही पैदावार के है, यानी आपके साथ हर तरह से धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की समाअत के दौरान वकील को उस वक्त डांट खानी पड़ी जब उन्होंने किसी बात का जवाब कर दिया। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ वकील की जुबान यानी बोलने के अंदाज से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने वकील को तकरीबन फटकारते हुए कहा है कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। बताया जाता है कि वकील ने 2018 की अर्जी पेश की थी, जिसमें वकील ने साबिक CJI जस्टिस रंजन गोगोई को मदा अलिया यानी फरीक दिफा बनाया था। अर्ज पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा है कि ये आर्टिकल 32 ये मुल्क के शहरियों को हक देता है कि जब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती है, और आप एक जज को मदा अलिया बनाते हुए अर्जी कैसे दाखिल कर सकते हैं? इसके जवाब में हाँ, इसमें तब के वकील ने कहा है कि चीफ जस्टिस रंजन को बनाया गया था, मुझे तरमीम शुदा अर्जी दाखिल करने को कहा गया था। वकील के इतना कहते ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ नाराज हो गए और वकील को टोकते हुए कहा कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं है बल्कि ये अदालत है। कांग्रेस ने बेरोजगारी की मौजूदा हालात पर मरकजी हुकूमत को पुरजोर अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी ने कहा है कि हक़ाइक़ को कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 से 24 के दरमियान मुलाजमतों को खत्म करने वाली तरक्की जॉब लॉस ग्रोथ हुई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया है कि बेरोजगारी के इस बहरान को हुकूमत ने खुद पैदा किया है। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि इस लड़खड़ाती हुकूमत ने गुज़िश्ता कुछ महीनों में कई U-टर्न लिए हैं और इसके कई घोटाले सामने आए हैं। लगातार फैल रही मनफियत के दरमियान खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनके ढोल पीटने वालों ने 2021 और 24 के दरमियान 8 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का दावा किया था। इनके मुताबिक ये दावा शुरू में रिजर्व बैंक के LEMS यानी सरमाया, मेहनत, तवन्नाई, मवाद और सर्विस डाटा के जरिए किया गया है, जिसको कांग्रेस हक़ाइक़ की बुनियाद पर पहले ही गुज़िश्ता 15 जुलाई को मुस्तरद कर चुकी है। जयराम रमेश का कहना है कि हुकूमत के स्पिन डॉक्टरों के पास एक और नंबर है। सितंबर 2017 और 24 EPF और डाटाबेस में शामिल होने वाले 6.2 करोड़ नियत सब्सक्राइबर्स और दोनों दावे डाटा की नाकाफी और पुरउम्मीद रेटिंग पर मबनी होता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक मस्जिद को गिराए जाने के मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि पुणे में सिर्फ एक ही मस्जिद को तोड़ा जा रहा, जबकि उनके आसपास के हजारों घर गैर कानूनी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि चंचवाड़ा पुणे के खेरगांव कालीवाड़ी में एक मस्जिद है जो गुज़िश्ता 25 वर्षों से वजूद में है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के आसपास करीब 1000 घर है जिनके पास कोई भी इजाजत नहीं, लेकिन सिर्फ मस्जिद दारुल उलूम जामिया निजामिया को ही तोड़ा गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला
एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा है कि सिर्फ एक मस्जिद के लिए इम्तियाजी सलूक क्यों कर रहे, उन घरों का क्या जिनके पास कोई भी इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा है कि दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने सिर्फ मस्जिद को चंचवाड़ गिराए जाने की शिकायत की है। पिंपरी पुणे के खेरगांव कालीवाड़ी के जिस इलाके में यह मस्जिद वाक़ है, इसे लेकर AIMIM सरबराह ने कहा है कि इस इलाके के कई मकान नाजायज है, लेकिन नोटिस सिर्फ मस्जिद को ही दिया गया है। दरअसल हिंदू तंजीमों ने मस्जिद को नाजायज बताते हुए हटाए जाने के लिए इंतजामिया से शिकायत की थी। शाही खबर के मुताबिक गुजरात में सोमनाथ तरक्याती मंसूबे के तहत मंदिर के पीछे की तजावुजात पर कार्रवाई को लेकर भी ओवैसी ने अपना एतराज जाहिर किया था। उन्होंने अल जजीरा का एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में मुबैना मस्जिद और दीगर ढांचों को गैर कानूनी और तजावुजात बताकर तोड़े जाने की कार्रवाई दिखाई गई है। अमेरिका के जुनूब मशरिकी इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान हेलन की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 116 हो गई है। ABS न्यूज ने इत्तला दी है। इसने बताया है कि तूफान हेलन से मरने वालों की तादाद 116 तक पहुंच गई है। ये अमवात जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, शुमाली कैरोलिना और वर्जीनिया और टेनेसी रियासतों में हुई है। पावर आउटेज .US मॉनिटरिंग सर्विस ने कहा है कि तूफान ने फ्लोरिडा, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिससे 20 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। 1 अक्टूबर 2024 से हिंदुस्तान में कई अहम उसूल तब्दील हो चुके हैं। जी हां, जिनका असर सीधा आवाम की रोजमर्रा जिंदगी और माली मामलात पर पड़ेगा। ये तब्दीलियां मुख्तलिफ शोबों जैसे बैंकिंग, टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है। इनमें से कुछ तब्दीलियां खासतौर पर इनकम टैक्स, पब्लिक फंड, PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम से मुतालिक उसूलों पर की गई है। आज से लागू होने वाले उन 10 अहम उसूल और उनके असरात पर एक नजर डालते हैं। पहला उसूल, हाउसिंग लोन और बैंकिंग। 1 अक्टूबर 2024 से कई बैंकों ने हाउसिंग लोन की शरह सूद में मामूली इजाफा कर दिया है। दूसरा उसूल, सुकन्या समृद्धि स्कीम। हुकूमत ने 1 अक्टूबर 2024 से सुकन्या समृद्धि अकाउंट के उसूलों में बड़ी तब्दीलियां की है। अब सिर्फ कानूनी सरपरस्त ही बेटियों के इस अकाउंट को चला सकते हैं। तीसरा कानून है PPF अकाउंट, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF से मुतालिक 3 बड़े खवानीन में तब्दीली की गई है। पहला ये कि अगर किसी शख्स के पास एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स हैं तो उन्हें यकजा करना होगा। दूसरा, नाबालिग के अकाउंट से मुतालिक कुछ जवाबित भी पेश किए गए थे। चौथा उसूल, ATF की कीमत में कमी। हवाबाजी के ईंधन यानी ATF की कीमतों में भी 1 अक्टूबर से कमी की गई है। दिल्ली में यह कीमत 39,480.22 रुपए फी किलोलीटर से कम होकर 87.56 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो एयरलाइंस और मुसाफिरों दोनों के लिए एक खुश आइन बात है। पांचवा उसूल, इनकम टैक्स के नए जवाबित है। 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स के कई जवाबित में तब्दीलियां की गई है, जिनमें TDS की शरहों में कमी और बराह रास्त टैक्स के तनाज़ात का आगाज शामिल किया गया है। छठा उसूल यह है कि शेयर बाई बैक टैक्सेशन। नए खवानीन के मुताबिक 1 अक्टूबर से शेयर होल्डर्स को शेयर बाई बैक से हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा। सातवां उसूल, पेंशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों में भी तब्दीलियां की है, जिनका मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। आठवां कानून, फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी FNO खवानीन। फ्यूचर और ऑप्शन FNO से मुतालिक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी इजाफा किया गया है। नवा उसूल, क्रेडिट कार्ड चार्जेस में तब्दीलियां। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अक्टूबर से अपने क्रेडिट कार्ड सर्विस चार्जेस में तरमीम की है। 10वां उसूल, LPG की कीमत। LPG की कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया है, जो 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल रहेगी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपए से बढ़ाकर 1740 रुपए फी सिलेंडर कर दी गई है। आज तीसरे मरहले की वोटिंग में रियासत की कई सीनियर लीडर अपने अपने हलकों में वोट डाल रहे। देवेंद्र सिंह राणा गांधीनगर मल्टी असेंबली हलके में वोट डालेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मल्टी असेंबली हलका नगर में वोट डालेंगे, जबकि गुलाम नबी आजाद गांधीनगर मल्टी असेंबली हलके में अपना वोट डाल चुके हैं। कुवेंद्र गुप्ता जम्मू शुमाली सीट जानीपुर में अपना वोट डालेंगे। जम्मू कश्मीर के 7 अजला में आज वोटिंग हुई है, जिसके पास 20,000 से ज्यादा पोलिंग अमले को तैनात किया गया था। जम्मू डिवीजन में जम्मू जिला में सबसे ज्यादा 11 इलाके हैं और इसके अलावा उन 11 इलाकों में भी वोट डाले गए हैं। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।